خوش آمدید میرے چینل دی انٹولڈ اسٹوریز پر۔ یہ چینل کہانیوں کا خزانہ ہے جہاں آپ کو ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی نئی اور دلچسپ کہانی سننے کو ملے گی۔ رشتے کی لاج۔ قادر صاحب ہمارے پڑوس میں رہتے تھے۔ ان کے والد صاحب سے اچھی خاصی دوستی تھی۔ پہلے ان کے حالات ٹھیک تھے، بعد میں آئے دن ہڑتالوں کی وجہ سے ان کی دکان بیٹھ گئی، کاروبار پر برا اثر پڑا اور وہ مالی طور پر بدحال ہو گئے۔ جب دکان میں نہ مال رہا اور نہ پیسہ تو اسے بند کرنا پڑا۔ ان دنوں ان کا بیٹا عارف کالج میں پڑھ رہا تھا۔ باپ کے مالی حالات خراب ہونے کا اس کی پڑھائی پر بھی اثر پڑا اور مزید تعلیم جاری رکھنا محال ہو گیا۔ قادر صاحب نے والد سے ذکر کیا۔ وہ بولے، میرا ایک دوست یوسف کل مجھے ملا تھا، اسے اپنے بھابھی کے لیے کسی ٹیوٹر کی ضرورت ہے، اگر عارف ٹیوشن پڑھا دے تو وہ اچھی فیس دینے کو تیار ہیں۔ قادر صاحب نے عارف سے ذکر کیا۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے ابا جان، میں پڑھا دوں گا، لیکن کہاں جانا ہوگا بیٹا؟ وہ یہاں سے کچھ میل پرے رہتے ہیں، تم کو موٹر سائیکل پر جانا ہوگا۔ عارف ہر حال میں تعلیم جاری رکھنا چاہتا تھا، تبھی کہنے لگا، ابا جان کوئی بات نہیں، میں وہاں چلا جایا کروں گا، آج کل تو یوں ہی 2 ماہ کی چھٹیاں ہیں، آپ ان سے ٹیوشن فیس کی بات کر لیں، اگر وہ اچھی فیس دیں گے تو ہاں کہہ دیجیے گا، یہ شام کو جا کر پڑھا آیا کرے گا۔ وہ بولے، تم اس بات کی فکر مت کرو، یوسف کا بھائی بہت امیر آدمی ہے، جو کہو گے وہ رقم دے دیں گے۔ عارف کو انہوں نے پتہ سمجھا دیا۔ اگلے دن وہ شام کو ان کے گھر گیا۔ ایک 60 سالہ بزرگ نے اس کا استقبال کیا۔ وہ سمجھا کہ ان بزرگ کی بیٹی کو پڑھانا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ بیٹی کو نہیں بلکہ ان کی بیگم کو پڑھانا ہے، جو پرائیویٹ میٹرک کی تیاری کر رہی ہیں۔ وہ کچھ حیران تو ہوا کہ میاں اگر 60-70 کے ہیں تو بیگم 50 کی تو ہوں گی، کیا وہ اس عمر میں میٹرک کا امتحان دے سکیں گی؟ خیر جب ان کی بیگم سامنے آئی تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ وہ کوئی عمر رسید عورت نہیں بلکہ بس مشکل 18 برس کی لڑکی تھی۔ عارف کو پڑھانے سے مطلب تھا۔ چند دن نامی خاتون بالکل نے سنجیدگی سے پڑھا، پھر ادھر ادھر کی باتیں زیادہ کرنے لگی۔ عارف نے ایک روز اس سے پوچھا، آپ کی عمر کیا ہے؟ وہ بولی، یہی کوئی 20 سال ہوگی۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ آپ کی شوہر تو کافی عمر کے ہیں، کیا یہ شادی آپ کی مرضی سے ہوئی تھی؟ جی، اس روز تو کرن نے یہی جواب دیا، کیونکہ ہم عمر ہونے کے باوجود ان کے درمیان استاد اور شاگرد کا رشتہ تھا۔ عارف نے سوچا، مجھے تو پڑھانے سے مطلب ہے۔ ان کا شوہر کھانوں کا کاروبار کرتا تھا، اس لیے اکثر دوسرے شہر میں اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا، ہفتے میں 2 دن ہی گھر رہتا تھا۔ اس دوران کرن اپنے ساس کے ساتھ گھر میں ہوتی، جو 90 سال کی سفیک عورت تھی، اسے کم سنائی دیتا اور دکھائی بھی کم دیتا تھا۔ اپنی ماں کے خاطر ہی منیر نے دوسری شادی کی تھی۔ کرن کی ماں باپ بہت غریب، انہوں نے اس مالدار بوڑھے سے بیٹی کا بیاہ اسی وجہ سے کیا تھا کہ منیر صاحب نے اس کی والدین دیگر بچوں کی اخراجات اٹھانے کی ذمہ داری بھی لی تھی اور برابر ان کو ہر ماہ خرچہ دیتے تھے۔ جن دنوں کرن کی شادی ان سے ہوئی اس کی عمر 16-17 برس، اور ہرگز ان کی ساس شادی پر رضامند نہ تھی۔ پھر باپ کی بیماری، وہ بے روزگاری اور گھر کے مفلسی کو دیکھ کر مان گئی، بلکہ مجبور اسی ماں اور ماموں کی بات ماننا پڑی۔ وہ اس شادی سے خوش نہ تھی، بالکل ایک بے جوڑ شادی تھی۔ جو بھی سنا یقین نہ کرتا، 1-2 نے سمجھایا بھی، لیکن جب لڑکی کے والدین نے ان کی نہ سنی تو وہ خاموش ہو بیٹھے۔ حال کرن بیاہ کر سسرال چلی گئی۔ جب تک شادی نہ ہوئی تھی وہ اپنے دل کو تسلیاں دے رہی تھی کہ قربانی سے میرے والدین تو سکھی ہو جائیں گے اور بہن بھائی بھی پڑھ لکھ جائیں گے، باپ کا علاج ہو جائے گا۔ تاہم شادی کے بعد جب منیر کو دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر روئی، یہاں تک کہ خواب گولیاں کھا لیں مگر ڈاکٹروں نے اس کی زندگی بچا لی۔ منیر صاحب بھی پریشان ہو گئے۔ اب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ یہ تو مجھ سے ظلم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کرن سے کہا، اگر تم اتنی ہی دکھی ہو اور میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو میں تم کو حق دے کر آزاد کرنے کو تیار ہوں۔ تم اس بات سے مت گھبراؤ کہ تمہارے والدین اور بہن بھائیوں کا کیا ہوگا، تم آزاد ہو کر کے بھی چلی جاؤ گی تو میں نے جو خرچہ ان لوگوں کو دینے کا وعدہ کیا ہے، ایک ضرورت مند خاندان کی مدد کا سوچ کر دیتا رہوں گا۔ میں کچھ دن سوچا تو اس کو احساس ہوا کہ اس کا شوہر بوڑھا ضرور ہے لیکن برا آدمی نہیں، اس نے بھی اپنی ماں کی خاطر دوسری شادی کی ہے،
पहली बीवी की वफात की 15 साल बाद शादी। तकदीर में ये लिखा था। किरण ने अपनी एक सहेली से मशवरा किया। उसने कहा जो होना था हो गया, अब तुम शादीशुदा हो चुकी हो, तलाक का दाग खुद पर क्यों लगवाती हो, 2-4 साल सब्र कर लो, बड़ी मियाँ ने तो आखिर मरना है ही है, कि सारी दौलत तुम्हारी होगी, उनकी कोई औलाद तो है नहीं, तुम ये करो कि जायदाद अपने नाम लिखवा लो, मियाँ मर गए तो बाद में ऐश करोगी, तुम्हारी उम्र बड़ी है, फिर से शादी कर लेना, फिलहाल अपनी तालीम मुकम्मल करो, इस तरह तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। वाकई किरण को कॉलेज की तालीम हासिल करने का बहुत शौक था, लेकिन हालात की वजह से पढ़ाई ना पड़ी। वो मैट्रिक का इम्तिहान भी ना दे सकी थी। ने किसी तरह खुद को समझाया और शौहर के कहा कि जो मेरी नसीब में लिखा था मुझे मिल गया, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ एक ख्वाहिश है कि पढ़ लिख कर जाऊँ, आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दें। इसके लिए घर पर ट्यूटर का इंतज़ाम करा दें ताकि माँ जी अकेली ना रहें और मेरी तालीम हासिल करने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। मुनीर साहब ने कहा ये कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं कि मैं पूरी ना कर सकूं, बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम पढ़ना चाहती हो। इस दिन से उन्होंने ट्विटर की तलाश शुरू कर दी, लेकिन कोई भी खातून टीचर इतनी दूर जाने पर रजामंद ना हुई। उन्होंने अपने भाई यूसुफ से कहा और यूसुफ ने मेरे अब्बू से। फिर आरिफ को ये ट्यूशन मिल गई और उसका पढ़ाई का मसला भी हल हो गया। नीयत नेक हो तो इसबाब भी बनते चले जाते हैं, लेकिन ये भी सच है कि इंसान की नीयत बदलते देर नहीं लगती। रफ्ता रफ्ता हालात ऐसे पैदा होने लगे कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। आरिफ रोज मोटरसाइकिल पर ट्यूशन पढ़ने जाता था और शाम को वापस आता था। एक रोज उसकी मोटरसाइकिल को एक कार ने टक्कर मार दी। खुदा का शुक्र है जान बच गई, मगर चोटें आई। वो लंगड़ाता हुआ किरण के घर पहुंचा और सारी बात बताई। किरण ने उसको बिस्तर पर लेटाया। जिस बाजू पर चोट आई थी उसकी ड्रेसिंग की, आंखों पर चोट लगने से नीच पड़ गई थी। बोतल गर्म पानी करके टकोर भी कर दी, फिर गर्म दूध दिया, कलर भी खिलाई। उस वक्त वो यही कर सकती थी क्योंकि घर पे कोई मर्द था नहीं। मुनीर भी अपने कारोबार के सिलसिले में गया हुआ था। उसका गोदाम दूसरे शहर में था। ये हादसा गोया कुदरत की तरफ से एक आजमाइश थी। ये दोनों उस हादसे के सबब एक दूसरे से करीब हो गए। दोनों ट्यूशन बैठते तो मुलाकात की नौयत जुदा होती। किरण के अंदाज में तब्दीली आ गई थी तो आरिफ भी खुद को बदला हुआ पाता था। वो सुबह वक्त से पहले उठ जाता, जल्दी जल्दी नाश्ता करके ट्यूशन की राह लेता। माँ कहती कि इतनी जल्दी क्यों जाते हो? जवाब देता इस वक्त ठंडा टाइम होता है, दिन चढ़ जाता है तो गर्मी भी बढ़ जाती है। किरण भी शिद्दत से उसकी मुंतजर होती। दिन को उसका शोर चला जाता जब आरिफ वहाँ पहुँचता था। बस बेचारी तो हिलने जुलने से मजबूर थी। अब किरण अपने सर पाया पर खास तवज्जो देने लगी। हर वक्त घर में रहती, लेकिन रोज एक नया जोड़ा निकाल कर पहनती और बना हुआ श्रृंगार करने लगी। खाना कोई अच्छी डिश बना कर रखती और आरिफ को खाना खिला कर ही जाने देती। आखिर छुट्टियां खत्म हो गई। अब आरिफ शाम को ट्यूशन पढ़ाने जाने लगा। वक्त गुजरता रहा। रोज किरण की तबीयत खराब हुई। वो डॉक्टर के पास गई। जब लौटी तो बहुत खुश थी, जैसे उसे जीने का मकसद मिल गया हो। उन दोनों आरिफ की इम्तिहान होने वाले थे। वो इम्तिहान की तैयारी करना चाहता था, लिहाजा उसने 2 माह की छुट्टियां ले ली थी। जब पर्चे खत्म हो गए तो वो किरण के घर गया। उसके शौहर ने कहा कि तुम 1 माह और छुट्टी करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझ पर करम किया है और मेरा वारिस इस दुनिया में आने वाला है। ये सुनकर आरिफ को झरी आ गई। जाने क्यों उसको ये इतला बुरी लगी और वो किरण से खींचा खींचा दूर रहने लगा। हाल किरण ने एक बेटे को जन्म दिया। उसके शौहर ने खूब खुशियां मनाई। बेचारा तो उसी दिन का मुंतजर था, मगर आरिफ को ना जाने क्या हो गया कि वो जब भी उस बच्चे को देखता उसे गुस्सा आने लगता। इसका जी चाहता कि इस बच्चे को कहीं दूर फेंक आए, लेकिन ये इन्होंने बात थी, वो ऐसा कैसे कर सकता था। ताहम उसको अब अपनी ज़िंदगी एक बोझ महसूस होने लगी। वो उस दिन को कोसता था जब उसने उस घर में कदम रखा था। जब उसका दिल ज़्यादा बोझल हुआ तो उसने किरण को ट्यूशन पढ़ाने से मना कर दिया। वो अब एक बच्चे की माँ थी, इसके बारे में गलत सोचना ही गुनाह था। वो कई दिन वहाँ ना गया तो बड़ा किरण अपने शौहर के साथ आरिफ के घर आई और उसके बाद दिन की मिन्नत समाजत करके उसे अपने साथ ले गई। माँ की अब उसका दिल ना चाह रहा था कि वो उनके घर जाए। वो सोचता था कि मैं तो एक गैर शादीशुदा लड़का हूँ, इस औरत को अपने खावंद की उसकी हिफाजत करनी चाहिए। कि उसने मुझे भी गलत ख्यालात में लगा कर ज़मीर के जलते
हुए बीड़े में झोंक दिया। किरण अपने दिली जज्बात पर काबू ना रख पा रही थी। वो इससे ज्यादा देर तक बैठने और बेतकलीफी से बात करने पर मशहूर हो गई थी। आरिफ बेरुखी से काम लेने लगा। यूं ही मुश्किल से उसने 2 माह का वक्त निकाला और वहां जाना छोड़ दिया। चंद दिन गुजर गए। किरण दोबारा घर आ गई और आरिफ की वालिदा की मन्नत करने लगी कि वो कम से कम FA तक ट्यूशन जारी रखे। इस रोज भी पूरा आरिफ उसके घर चला गया, लेकिन दिल में तहज़ा कर लिया कि वो अब उस मामले को हर सूरत में ख़त्म करके ही आएगा। इधर किरण ने भी सोच लिया था कि आज वो फैसला किन बात करेगी। घर पहुंचकर वो बोली, देखो आरिफ, अगर अब तुम मुझसे आंखें चुराओगे तो मैं तुम पर इल्ज़ाम लगा दूंगी, तुम कहीं के नहीं रहोगी। आरिफ ने औरत की इज़्ज़त की किस्से सुने थे, लेकिन ये रूप कभी ना देखा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि ये औरत अपनी अदनी ख्वाहिशों के पीछे इतना गिर सकती है। उसकी बात सुनकर वो सख्ती में रह गया था। वो इस वक्त तो खामोश हो गया, लेकिन सोचा रहा कि आखिर करूं तो क्या करूं और कैसे इससे जान छुड़ाऊं। कहीं ऐसा ना हो ये मेरे गले का तोक बन जाए और माँ बाप की इज्जत भी खाक में मिला दे। आखिर इसने सोचा कि इसके शोर से कह दें, इस तरह बात भी रह जाएगी और जान भी छूट जाएगी। आरिफ मुनीर साहब से घर के बाहर मिला और उससे कहा कि आपकी बेगम साहिबा मुझसे नाराज़ हो गई हैं, कहती हैं कि मुझे दूर पढ़ाओ, जबकि अब मेरी अपनी पढ़ाई का मसला हो रहा है। मेरा FAC का दूसरा साल है, नंबर अच्छे नहीं आए तो मेरी सारी मेहनत रायगा जाएगी। और उनका कहना है कि मैंने अगर उनकी बात ना मानी तो वो मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देंगी। मैं किसी और ट्यूटर का इंतज़ाम कर देता हूँ। ये उस पर भी राज़ी नहीं है। आप ही मेरी मदद कीजिए। आखिर वो दूसरे ट्यूटर से क्यों नहीं पढ़ना चाहती। उन्होंने कहा, किसी और ट्यूटर को हम उस लिए रखना नहीं चाहते कि पर भरोसा है और मैं तुम्हें अपने बेटे जैसा दर्जा देता हूँ। हर किसी को तो ट्विटर नहीं रखा जा सकता। बहरहाल तुम कल घर आना, मैं किरण को समझाऊंगा, तुम्हारे सामने बात करूंगा। उम्मीद है कि वो तुम्हारी मजबूरी समझ जाएगी। दूसरे रोज़ आरिफ कॉलेज की छुट्टी के बाद उनके घर गया। दोनों मियाँ बीवी खाना खा रहे थे। मुनीर साहब ने उसकी काफ़ी आवभगत की, प्यार से पास बिठाया और कहा, बेटे क्या तुमने मेरी बेगम को पढ़ाना छोड़ दिया? जी, अब अपने इम्तिहानात की तैयारी करना है, इसलिए पढ़ाने नहीं आ सकता। वो बेगम से मुखातिब हुए, आपको आरिफ मियाँ से क्या शिकायत है? जवान पर चोरी का इल्ज़ाम लगाना चाहती हैं। इसने तो आपको पढ़ाया है, आपकी साथी की है। वो घबरा कर बोली, मुझे तो उनसे कोई शिकायत नहीं है, पर क्या बात है? इसकी मजबूरी है, ये मजीद नहीं पढ़ा सकता तो आपने धमकी दे डाली। ये सुनकर वो पत्थर का बुत बन गई। जरा देर सोचा, फिर यारे से बोली, दरअसल आजकल रिश्ते अच्छे नहीं मिलते हैं। मैं अपनी छोटी बहन से उनका रिश्ता करना चाहती हूँ। सोचा ये मान जाएंगे तो उनकी किस्मत खुल जाएगी। यही बात थी जो उनको पसंद नहीं आई। मैंने चोरी का इल्ज़ाम लगाने वाली बात तो यूं ही मजाक में कह दी थी। क्या ऐसी बात है इस पर ट्यूशन छोड़कर जाना चाहते हो? आरिफ ने इस बात पे रहला दिया क्योंकि किरण ने बात बना दी। दरअसल मुझे अभी तैलीम मुकम्मल करनी है और किसी की लड़की को इतना इंतज़ार करना है मैं ठीक नहीं समझता। किरण ने अच्छा सोचा, तुम भी ठीक सोच रहे हो। रही तुम्हारी पढ़ाई की बात तो वो भी ठीक है, तुम FAC की तैयारी कर लो। बेशक हम मजबूर नहीं करेंगे, तुम ट्यूशन के लिए वक्त निकालो, मैं तुमको खुशी से इजाज़त देता हूँ। अगर इस दौरान किसी किस्म की माली मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर याद करना। मैंने तुमको बेटा कहा है तो उस रिश्ते की लाज रखूँगा। उनके ऐसा कहने पर आरिफ शर्मिंदा हो गया। उसने दिल में तय कर लिया कि वो हरगिज़ इस शरीफ आदमी की हरमत मुखल ना होगा। ये बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, ये उन मियाँ बीवी का मामला है। मेरा मामला ये है कि खतरे की बू सूंघते ही परे हट जाऊँ। घर आकर उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि मुनीर साहब ने मामला सुलझा दिया, ना कुछ गलत भी हो सकता था। बीमारी का बर वक्त इलाज करना ही अच्छा होता है। वो जरूर समझता था कि किरण को एक उमर रशीद से ब्याह कर उसकी वालिदीन ने गलती की है। बच्चों के रिश्ते वालिदीन को हरगिज़ ऐसे ना करने चाहिए। लड़कियां बेचारी बेजुबान होती हैं, अपनी शादी के मामले पर बोल नहीं सकती। फिर जब उनके कदम बहक जाएं तो मुआशरा ही उनको बुरा कहता है।
हमारे मुआशरे में अमूमा ये अलमिया है कि लड़कियों को शादी के दौरान पूछा नहीं जाता कि उन वो क्या चाहती हैं और उनको किन से शादी करनी है, लड़का पसंद है या नहीं, ये सब वालिद ही तय करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इतनी अच्छी वीडियो के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। थैंक यू सो मच।